Hello, students. Today I'm going to start our third chapter from the book Honeydew, and this is Glimpses of the Past. We can find out the meaning of this word. Glimpses means झलकियाँ. कुछ जो है हमारे इतिहास की झलकियाँ जो है इस चैप्टर के द्वारा हमें पता चलेंगी. और इस चैप्टर को जो है आपके सिलेबस में देने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है. There is an objective to give this chapter in your syllabus that will enable the students to understand the British reign in India. भारत में जो है ब्रिटिश रेन साम्राज्य के बारे में जो है आपको समझने में इससे मदद मिलेगी. And you will get the knowledge about some freedom fighters from the given text, and you will be enabled to write the events in order, and you will be enabled to get the knowledge to narrate the events in chronological order, and you will feel the love and respect for the country and patriots. So these are the main objectives of this chapter. So students, before we read, I want to tell you about the outline of this story, then you will come to know it easily. As you have seen, this chapter is about our past for our freedom fight, which was in first freedom fight, 1857. That was the War of Independence, and who were the martyrs, and it is about the destiny of our India. So at first I am going to start give you a short summary of this chapter. So during the 18th century, British East India Company was extending its power in worldwide. That time, Indian princes were fighting each other. East India Company subdued Indian princes one by one, and during the period of 1765 to 1836, India had to witness many incidents, untouchability, child marriage, and other social evils existed in Indian society. The people were superstitious too. The British imposed heavy taxes on farmers so that farmers had to abandon their fields. The East India Company's law began to cripple Indian industries. Raja Ram Mohan Roy, who was a socialist, social reformer, a learned person from Bengal, understood what was wrong with the country. And he was attracted by science and modern knowledge. He went to England and fight for the justice of India. But the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed regulations, and under it, an Indian could be jailed without trial in the court. During 1835 to 56, Thomas Macaulay suggested some change in Indian education. And what change he brought through his trial? They taught Indians their language. By 1856, British had conquered the whole India. Some Indian soldiers in East India Company were ill-pleased with the attitude of East India Company. A soldier named Mangal Pandey attacked the adjutant of the regiment and executed. In 1857, a violent revolt was outbroken, as you all know. The rebellion spread wider. Many landlords lost their lands because of the British policies. Many rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow also lost their land, lost their kingdom, and popular leaders like Maulvi Abendullah of Faizabad
Tatya Tope aroused the people of India to fight against British Raj. So this is all about the British rule in India, how they spreaded their rule throughout the country, throughout the world. They adopted a policy and that was divide and rule, and through this policy they divided the princes of India who were not well educated, who were not well minded people. They were divided by the tricks of Britishers, and in this situation the Britishers got the rule throughout the country. So I'm going to start our chapter from the first point, and as you can see that this is a pictorial एक्सप्रेशन ऑफ द स्टोरी. पिक्टोरियल एक्सप्रेशन मीन्स पिक्चर वाइज जो है इसको दिखाया गया है. जैसे कॉमिक्स बुक्स होती हैं, कॉमिक बुक्स में कैरेक्टर को दिखाया जाता है और किसके द्वारा कैसे बात कही जाती है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको दिखाया गया है. तो इट इज़ अ पिक्टोरियल ग्लिम्प्स ऑफ द पास्ट. पिक्चर के फॉर्म में जो है पास्ट की कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं और क्रोनोलॉजिकली इनको बताया गया है, ऑर्डर वाइज इनको बताया गया है, इवेंट वाइज इनको बताया गया है, सो दैट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड दैट विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच ईयर. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर. बिफोर यू रीड, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. यहाँ पर जो है कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस हमारे पास्ट की, हमारे इतिहास की दिखाई गई हैं, जो कि 1757 से लेकर के 1857 की जो सेंचुरी का एक पीरियड है उसके ड्यूरेशन में जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो भी इंसिडेंट्स हैपन हुए हैं, उन सबको दिखाता है. These pictures are speech bubbles which help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. These pictures are speech bubbles. Speech bubbles क्या हैं कि हमारी जो ये पिक्चर्स हैं, एक speech bubble is a form of telling a dialogue which is spoken by a particular character. Like this, here is a speech bubble. In this there is a 3 or 4 sentences are written and there is a bubble is given towards the lady. So it is a speech bubble. ये क्या शो करता है that these sentences are spoken by the lady, so they are called speech bubbles. और ये जो हमारा पूरा चैप्टर है ये स्पीच बबल्स के द्वारा ही, जिसमें क्या दिखाया गया है कि किस करेक्टर ने जो है किस इवेंट में क्या बात बोली है, किस तरह से बात की है, वो सब दिखाएगा. सो दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प, ये हमें हेल्प करेंगे टू क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग को जो है बेहतर बनाने में, ऑफ द कंडीशंस, उन सिचुएशंस के लिए दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उन कंडीशंस को दिखाने के लिए जिनकी वजह से जो है कौन सा बड़ा युद्ध हुआ था, इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हमारी आज़ादी के लिए पहली लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर. द मार्टर्स. मार्टर्स कौन हैं? जो शहीद हैं, उनको क्या बोला जाता है? मार्टर्स. So here is a lady who is speaking something, and there are the sentences which are spoken by the lady are given at a function in Delhi. This is the scene of a function which held in Delhi. Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs. You have learnt a song, heard a song which is "ऐ मेरी वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी." So this song was sung by Lata Mangeshkar. So this lady is Lata Mangeshkar and she is singing the song "Oh my countrymen, ऐ मेरे वतन के लोगों, let your eyes fill with tears, अपनी आँखों में भर लो पानी, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेज ऑफ इंडियाज़ मार्टर्स,
जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। रिकॉल मीन्स याद करना। सो दिस इज़ अ सॉन्ग which is sung by Lata Mangeshkar, and it is a speech bubble, a symbol, a signal which is giving us idea that who has spoken this song, who is saying these sentences. So I think you all have understood about it. What is a speech bubble? So it is very important in a pictorial glimpse. पिक्टोरियल ग्लिम्स यानी कि कॉमिक की तरह, कॉमिक्स की तरह जब कोई चैप्टर, कोई भी पॉइंट हमें दिखाए जाते हैं तो उनमें स्पीच बबल्स का क्या काम होता है कि कोई भी करेक्टर कुछ भी बोल रहा है तो उस करेक्टर को जो है सिंबलाइज करने के लिए, उसकी तरफ अटेंशन डालने के लिए कि किसने इन शब्दों को बोला है, उनको जो है स्पीच बबल्स बोलते हैं। और यहाँ पर हमने जो सेंटेंसेस पढ़े हैं वो एक सॉन्ग है हमारा, एक देशभक्ति सॉन्ग है जो कि इस लड़ी के द्वारा गाया गया है। सो हेयर वी कैन सी देयर इज़ चाचा नेहरू एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद एंड नेहरू's daughter Indira Gandhi is sitting here. So this is a function which held in Delhi and where Lata Mangeshkar sung this song. So we are coming to the next point. There is not given any dialogue. There are shown the martyrs of India. शहीदों को दिखाया गया है जिन्होंने जो है आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया। So come to the next point. So here is the map of India is given, which shows the condition and empire of 1765. Here yellow color shows that where Indian princes were ruling in the country, and this reddish zone shows that it is British territory. इट मीन्स यहाँ पर इन एरियाज़ में जो है ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया था, और बाकी का जो येलो कलर है ये किसको दिखाता है, इंडियन प्रिंसेस के द्वारा रूल किया जाने वाला एरिया। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट विद, हियर इज़ विद its superior weapons, the British East India Company was extending the power in 18th century India. अपनी सुपीरियर वेपन्स के साथ, हथियारों के साथ ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में क्या करने के लिए आई थी, दैट केम इन इंडिया फॉर ट्रेड, व्यापार करने के लिए आई थी, फॉर ट्रेडिंग इन आवर कंट्री बिकॉज आवर कंट्री वॉज फुल ऑफ रॉ मटीरियल and raw material was exported in other countries from India today also. So ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपनी पावर को 18th सेंचुरी में इंडिया में एक्सटेंड करना शुरू कर रही थी वो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। हमारे देश के जो प्रिंसेस थे, राजा थे, वो शॉर्ट साइटेड थे। शॉर्ट साइटेड मीन्स, इट मीन्स अदूरदर्शी, यानी कि जो दूर तक का ना देख सके, ना सोच सके, जो कि जिनको हम जो है लेस माइंडेड भी बोल सकते हैं, शॉर्ट माइंडेड भी बोल सकते हैं। दैट अपस्टार्ट राजा बाग call the English merchants, they will help me to defeat him. That upstart, these sentences are spoken by the man who is sitting in the chair, who is a prince. And what is he saying? That upstart Raja Ba call the English merchants, they will help me to defeat him. आप जो है वो क्या कह रहा है कि इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ, अंग्रेज़ी व्यापारियों को बुलाओ, और वो मेरी सहायता करेंगे राजा बा को जो है अपने रास्ते से हटाने में। दूसरे राजाओं के साथ लड़ाई करने के लिए भारत के प्रिंसेस क्या करते थे, वो जो है अंग्रेज़ों की सहायता लेते थे, और अंग्रेज़ जो है इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते थे। The people had no peace due to such constant fights.
और इन कांस्टेंट फाइट्स की वजह से जो है लोगों में अशांति हो गई थी, चारों तरफ अशांति का माहौल फैल गया था और लोग जो है एक अच्छा जीवन यापन नहीं कर रहे थे। द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और जो राइवल्स थे, एक राजा दूसरे राजा का राइवल था, जो राजा दूसरे राजा से जलता था, उसका राज्य जो है पाना चाहता था, वो क्या करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता करता था ताकि जो है दूसरे राजा का राज्य हड़पा जा सके। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। लेकिन एक फार-सीइंग एक दूरदर्शी राजा था, रूलर था, जिसका नाम क्या था, टीपू सुल्तान, who was the Sultan of Mysore, who fought with the Britishers till he died in fighting। वो जो है ब्रिटिशर्स के साथ लड़ा जब तक वो फाइटिंग में जो है शहीद नहीं हो गया था। उसने कभी भी जो है अंग्रेज़ों को इसका फ़ायदा नहीं उठाने दिया, जैसा बाकी प्रिंसेस जो है अंग्रेज़ों को अपना फ़ायदा उठाने के लिए आमंत्रित करते थे, इनवाइट करते थे ताकि वो जो है अंग्रेज़ों के साथ मिल करके दूसरे राजाओं को हरा सके। बट दे डिडंट गेट एनी बेनिफिट बाय दिस स्कीम बिकॉज ऑल बेनिफिट वॉज टेकन बाय द ब्रिटिशर्स ओनली। दे adopted the empire of other princes also and the prince who called them there also। Thank God there is peace in the country now, no more wars and no looting by thugs। Now some people are discussing with each other and this man is saying that भगवान का शुक्र है, there is peace in the country now, अब हमारे देश में शांति है, राज्य में शांति है, अब कोई जो है युद्ध नहीं है, ना कोई लूट खसोट है, ना कुछ भी ऐसी समस्याएं हैं। अब ये क्या कहता है, इट्स गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये भगवान का शुक्र है जिन्होंने ब्रिटिशर्स को हमारे पास भेजा है। ये कौन है, ये एक प्रिंस है। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद दैम, हमारा भाग्य जो है इन अंग्रेज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। दे आर डिस्कसिंग विद ईच अदर अबाउट द ब्रिटिशर्स। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, और जो भारतीय थे उनका रिएक्शन जो है इस तरह का होता था जब किसी राज्य को जब वो हड़प लेते थे। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ द फॉरेनर्स। नाउ देर आर कॉमन पीपल डिस्कसिंग विद ईच अदर। These sentences are spoken by the prince and his noblemen, and these sentences are spoken by the common man. What they are saying the white man has killed the or dethroned the our kings। इन सफ़ेद गोरे लोगों से मतलब किससे है, ब्रिटिशर्स ने जो है हमारे राजाओं को मार दिया है या फिर उनको जो है उनके सिंहासन से हटा दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, कुछ राजा ठीक नहीं थे, अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो हमारे देश के तो थे ही। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हमें जो है हम किसके गुलाम बन गए हैं, इन विदेशों के गुलाम बन करके रह गए हैं। Now again one picture is given here. What is the heading of this picture? Third point, British rule 1765 to 1836। अब हमारे देश के ज़्यादातर राज्यों में जो है ब्रिटिश का रूल हो गया था और इस ड्यूरेशन के दौरान जो है क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है, क्या क्या इंसिडेंट्स हमारे देश में घटित होते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage। हमारे जो रिलीजियस लीडर्स थे, धार्मिक नेता थे, वो क्या करते थे, किसकी शिक्षा देते थे, अनटचेबिलिटी की और चाइल्ड मैरिज के बारे में। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन, और वो लोगों को क्या बोलते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति समुद्र लांघ करके दूसरे देश में चला जाता है तो वो अपने धर्म से मुक्त हो जाता है, यानी कि वो अपने धर्म का बहिष्कार कर देता है और हमारे धर्म का
नहीं रहता है। तो जो ये रिलीजियस लीडर्स थे वो कॉमन मैन्स को क्या शिक्षा देते थे? अनटचेबिलिटी के बारे में शिक्षा देते थे, चाइल्ड मैरिज के बारे में उनको जो है उपदेश देते थे, और ये भी बताते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है हमारे देश को छोड़ करके समुद्र लांघ करके ब्रिटेन में या किसी और कंट्री में जाएगा तो वो अपना धर्म खो देगा, वो हमारे धर्म का व्यक्ति नहीं रहेगा। नाउ ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। और वो लोगों को क्या बताते थे कि इस दुनिया में जितना भी दर्द है, दुख है, उसका एक कारण क्या है? औरत की वजह से जो है ये सब दुख और यातनाएं हमें झेलनी पड़ती हैं। सो ये सोच क्या दिखाती है? जो कि रिलीजियस लीडर्स थे उन्होंने एक अपनी अलग ही सोच बना रखी थी, जो वो दूसरे लोगों को भी उपदेश देते थे कि औरतें जो है वो सभी दुखों की जड़ होती हैं, और कोई भी भारतीय जो है अगर समुद्र लांघ करके दूसरे देश में चला जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो अपने धर्म का नहीं रहता है, वो अपने देश से जो है प्यार नहीं करता है। और उसके बाद वो क्या बताते हैं? The truth was that Indians had lost self-respect. The British accorded them. अब इसके बाद क्या हुआ? जब लोगों की सोच ऐसी बना दी थी इन धार्मिक नेताओं ने, तो उसके बाद हमारी जो सच्चाई क्या थी कि इंडियंस ने जो है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दिया था। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको अपना गुलाम बना लिया था। अब यहाँ पर एक ब्रिटिशर की तरफ जो है ये स्पीच बबल दिया गया है, यानी कि ब्रिटिशर कुछ कह रहा है, The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. True, your honor, but I am honest. यहाँ पर क्या है? ये अंग्रेज किसी हिंदू को बोल रहा है कि यहाँ के लोग क्या हैं? The natives are unworthy of trust. विश्वास के लायक नहीं हैं यहाँ के लोग, और ईमानदार भी नहीं हैं। लेकिन ये एक इंडियन है जो इसकी तरफ हाथ जोड़े हुए है, और वो क्या कर रहा है? ट्रू योर ऑनर, सच बात है मेरे मालिक, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। अब एज यू ऑल नो, ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया एज मर्चेंट्स, व्यापारियों की तरह आए थे, और मर्चेंट होने के नाते वो जो है क्विक प्रॉफिट चाहते थे, जल्दी से जो है अपना फ़ायदा करना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स। और उन्होंने इतने ज़्यादा भारी भरकम टैक्स कर लगा दिए भारतीयों पर, उनको फोर्स कर दिया ये सब पे करने के लिए, और अगर वो इन करों को पे नहीं कर पाते थे तो उनके खेतों को, उनकी ज़मीन को उनसे छीन लिया जाता था। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। और जब भी वो कर पे नहीं कर पाते थे तो ये कॉमन मैन की आवाज़ है, फार्मर्स की आवाज़ है, जो कि ब्रिटिशर्स को कहते हैं, जब वो उनके खेत छीन लेते हैं, उनकी ज़मीन को छीन लेते हैं कि आपके लोगों ने हमारी सारी फसल तो ले ली है। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। और ये ब्रिटिशर है जो कि एक फार्मर को कह रहा है कि तुमने जो है, तुम्हारा कुछ बकाया है, तुमने अभी पूरा पे नहीं किया। एरियर क्या होता है? बकाया। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम अगले सप्ताह इसको पे नहीं करते हो तो तुम्हें मैं जेल भेज दूँगा। तो यहाँ पर क्या पॉइंट दिखाया गया है कि ब्रिटिशर्स जो है इंडियंस को बहुत ज़्यादा बैडली ट्रीट करते थे, और उन्होंने हमारे भारतीयों पर जो है बहुत भारी भरकम कर लगा रखे थे, और जितना उनकी फसल से उन्हें फ़ायदा होता था उससे कहीं ज़्यादा उनको जो है टैक्स के रूप में पेमेंट करना पड़ता था। और जब फार्मर्स जो है किसी कारणवश पेमेंट नहीं कर पाते थे तो उनको जो है अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ता था। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गिव देम मोर प्रॉफिट्स। और अभी जो है ब्रिटिशर्स ने इतने ज़्यादा मेथड्स को इन्वेंट कर लिया था, तरीके अपना लिए थे, जिससे उनको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एन इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। अब जो है ये ब्रिटिशर हेड है, ऑफिसर है, उन्होंने क्या बोला कि जो चीज़ें इंग्लैंड में बन के भारत में आती हैं उनके ऊपर कोई कर नहीं लगना चाहिए, यानी कि उनका बेनिफिट था। अगर उनको कर टैक्स पे करना पड़ता तो इसमें उनका नुकसान हो जाता, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जो सामान इंग्लैंड से बन करके भारत में आता है उसके ऊपर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी, कोई जो है
आयात कर नहीं लगेगा। अब ये बाकी ब्रिटिशर्स हैं जो इसके हेल्पर हैं, वो क्या कह रहे हैं, अ गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, और इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून थे उसकी वजह से हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई। नाउ इनएविटेबली famines followed between 1822 and 1836. 15 लाख इंडियंस died of starvation. अब क्या हुआ कि 1822 से लेकर के 1836 तक भारत में जो है बहुत सारे अकाल पड़े। फेमाइंस क्या होते हैं, अकाल, जिसकी वजह से भारत में जो है भुखमरी की वजह से, स्टारवेशन मीन्स भुखमरी की वजह से 15 लाख इंडियंस की जो है मृत्यु हो गई थी। सो द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। ब्रिटिश की जो नीतियां थी, उनके जो रूल्स थे, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे देश के जो आर्टिसंस थे, जो आर्टिस्ट थे, वो उनका जो धंधा था वो भी ठप हो गया, उनका जो बिजनेस था वो भी इसकी वजह से ख़त्म हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ the entry of Raja Ram Mohan Roy, who was a Bengali and who was a learned man, very educated man, and who did many things for the improvement in the condition of Indians regarding their education and many other things, like many evils were spreading in our society like child marriage, sati pratha. So he removed all these evils and spreaded the education throughout the country, and his time came in 1772 to 1833. Raja Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. राजा राम मोहन रॉय एक बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे बंगाल से, और वो समझ गए कि हमारे देश में जो है क्या गलत हो रहा है। Let's not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. अब जो राजा राम मोहन राय हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमें अपने आप को जो है दुख में नहीं करना चाहिए, अपने आप को जो है गलत नहीं सोचना चाहिए। हमारा जो एंशियंट कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा महान है, हमारी संस्कृति बहुत ज़्यादा महान है, और हम इतने कैपेबल हैं कि हम बहुत बड़ी अचीवमेंट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं अपने बलबूते पर। सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी को सुधारना होगा, जिसमें बहुत सारे अंधविश्वास हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं, हमें हमारा विनाश कर रहे हैं। रोइनिंग मीन्स हमें हमारा विनाश कर रहे हैं। सुपरस्टिशंस मीन्स अंधविश्वास। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, वो अपनी वाइफ उमा को बताते हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. This shows his secularism. क्या बताता है, गाय अलग अलग कलर की होती हैं लेकिन उनके दूध का रंग कैसा होता है, एक जैसा होता है। और हमारे टीचर्स भी अलग अलग हो सकते हैं और उनके ओपिनियंस, उनका बताने का, समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनकी जो शिक्षा है वो क्या होती है, हमेशा सेम होती है। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन, और शिक्षा जो है हर धर्म की एक जैसी होती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हर कोई टीचर, चाहे वो कुछ भी पढ़ाता हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें कोई भी टीचर है, वो उनका पढ़ाने का मेथड अलग अलग हो सकता है, उनका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका टारगेट क्या होता है कि वो आपको सिर्फ शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, आपको सिर्फ वो चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, राजा राम मोहन राय अपनी वाइफ को सेक्युलरिज्म दिखा रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता दिखा रहे हैं कि भले ही जो है कोई किसी धर्म से हो, लेकिन जो है उनकी शिक्षा जो है हमेशा लोगों को एक समान ही मिलती है। He was attracted by science and modern knowledge. राजा राम मोहन रॉय किससे अट्रैक्टेड थे, साइंस से और हमारी जो आधुनिक ज्ञान है उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक,
और राजा राम मोहन राय क्या कहते हैं कि नॉलेज जो है, ज्ञान कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक भी होना चाहिए, हमें सुपरस्टिशंस में विश्वास नहीं रखना चाहिए। He started newspapers but suspicious British stopped them in 1823। उन्होंने जो है न्यूज़पेपर में अपने विचारों को छापना शुरू कर दिया, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो बड़े सस्पिशियस थे, उनको शक था कि ये जो है सोसाइटी को बदलने की कोशिश कर रहा है, लोगों का जो अंधविश्वास है उसको हटाने की कोशिश कर रहा है, अपनी सोसाइटी को सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जो उन्होंने 1823 में इस न्यूज़पेपर को बंद करवा दिया। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them। और फिर राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, वो उनके रोके नहीं रुके और वो जो है समुद्र पार करके जो है इंग्लैंड में जाते हैं। और वहाँ पे वो क्या देखने के लिए जाते हैं कि ब्रिटिश किस वजह से इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। और फिर वहाँ जाके उनको क्या पता चलता है, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, बट यू मस्ट रिमेंबर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। और वहाँ पर जा कर के राजा राम मोहन राय ब्रिटिशर्स को क्या कहते हैं कि हम तुम्हारा राज्य स्वीकार करते हैं, तुम्हें एज ए रूलर जो है हम स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम्हें भी हमें अपनी प्रजा के तौर पर स्वीकार करना होगा और तुम्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी जो है एक रूलर होने के नाते क्या ड्यूटीज़ हैं अपनी प्रजा के लिए। जैसे इंडियंस को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे, उनकी ज़मीन को छीन रहे थे, दे वर अबेंडनिंग देयर फील्ड्स फ्रॉम दैम एंड दे हैव इम्पोज्ड मैनी हैवी टैक्सेस ऑन इंडियंस। सो राजा राम मोहन रॉय सेज इन ब्रिटेन दैट इफ़ यू वांट टू बी अ रूलर यू शुड बी, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद योर रूलिंग, बट यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सब्जेक्ट्स मीन्स तुम्हें अपनी प्रजा की, अपने लोगों की भी वहाँ पर जो है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। सो बाय दीज सेंटेंसेज ही wanted to make them understand. So up to here we have discussed our chapter today. Tomorrow we will discuss it further. Thank you.